अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। क्विकली आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज के हम टॉपिक में कवर करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन को देखेंगे हम, एलसीएम और एचसीएफ को हम देखेंगे। प्राइम नंबर्स हम देखते हैं कि बड़े हम कंफ्यूज होते हैं कि आइदर प्राइम नंबर क्या होते हैं। Prime numbers are the numbers which are only divisible by the table by the number itself. That's it. Or they have only two factors. One is common to all of the factors and the number itself makes the second factor. What about 0 and 1? They are neither prime numbers nor composite numbers. Okay, let's move ahead. The first prime number is 2. Prime number is 2. It is the only even prime number. It is the only even prime number. Rest of the prime numbers are odd numbers. Okay, let's move forward. The next 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 23 प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 27 प्राइम नंबर नहीं है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 33 प्राइम नंबर नहीं है, 35 प्राइम नंबर नहीं है, 37 एक प्राइम नंबर है और इस तरह चलते जाएंगे। नाउ व्हाट आर composite numbers? The numbers between the prime numbers. The numbers other than prime numbers are called composite numbers. 4 is a composite number, 6 is the composite number, 8, 9, 10 are the composite numbers, 12 is the composite number, 14, 15, 16 are the composite numbers, 18 is the composite numbers, and so on. Hope you are clear. Starting with our topic number 2, prime factorization. Prime factorization. First of all, we must know what is factorization. Factorization is splitting a number into its factors. Splitting any number into its factors is called factorization. And what is prime factorization? Whenever you split a number into a prime numbers is called prime factorization. Let's have a look. If we have 8, then you must use prime numbers over here and always try to use 2 first. Here the 8
and its prime factors are these are its prime factors. Have a look at another example. Let's say 32, it's 2, 2, 8, 4, 1. Prime factors are 2, 2, 2, 2, 2. In the index notation form, you may also write like this. Count the number of 2's and write down the sum over here in its index. Let's have another example. 30. We can use 2 over here. Then we cannot use now 2. What is the next prime number is 3. 3 5s are 15. Now we cannot use neither 2 nor 3. The only, because it is also a prime number 5 itself, then this. So 3 is splitting into its partial fraction form 2 into 3 into 5. That's it. क्लियर हो गया? अब आते हैं एलसीएम की तरफ. What is LCM? The least common multiple. The least common multiple. इसमें हम दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं और उन दोनों के आपका आपस में क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं. इसके दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है. लेट्स फॉर एग्जांपल 18 एंड 21 का हम एलसीएम लेते हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले इनके अलग अलग आप फैक्टर्स बना लें. 2 9 3 3 ठीक है, 2 3 3. 21 के 3 से नहीं जाता. 7 is itself a prime factor. जी, तो एलसीएम इसका जब हम देखते हैं कि आपने क्या करना है कि दोनों में से सबसे पहले आपने देख लेना है कि कौन सा कॉमन आ रहा है. जिसमें हमारे पास 3 एक कॉमन आ रहा था दोनों में, तो उसको हमने एक दफ़ा उसको लिख लिया. उसके अलावा बाकी जितने हैं उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे. 2 ये कॉमन वाला आ गया, ये जो रिमेनिंग बच गया था दूसरा 3, और ये जब इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका आंसर 126 आ गया. हम एक और मेथड के साथ भी इसको देखते हैं कि इसको हम कवर करते हैं उस दूसरे मेथड के साथ. उसमें हम एक साथ ही हम उसको एलसीएम को ले लेंगे. कैसे ले लेंगे देखते हैं. ऐसे 3 हम देखते हैं दोनों में आ जाता है. 3 6 18, 3 7 21, देन 3 2 7 2 1 7 7 1 1. तो आप देखें ये भी 3 3 2 7. जब 3 3 2 7 सेम होगा तो इसका आंसर भी सेम ही 126 ही आएगा.
इसमें आपको यहाँ पे कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप एक साथ ही दो टर्म्स को आप ले जा सकते हैं। HCF और LCM में इस तरह में बहुत छोटा सा फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आपने LCM के लिए बिल्कुल एंड तक आना है, सारे टेबल पढ़ते हुए आपने आखिर में 1 तक लेकर आना है। जब हम बात करते हैं HCF की, जब हम बात करते हैं HCF की, इसी का देख लेते हैं HCF, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो कि जिससे वो दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए, ठीक है। हाईएस्ट नंबर 1821 है, वो कौन सा नंबर है? 2 से दोनों नहीं डिवाइड हो सकते, 2 से नहीं हो सकते, 3 से देखते हैं, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3, 6, 7। अब ये दोनों नंबर्स किसी और टेबल में नहीं आते एक साथ। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए आपने वहां पे स्टॉप कर देना है, देयरफॉर उसका HCF क्या होगा? 3। जब मजीद आगे डिवीजन नहीं हो सकी आपने वहीं पे रुक जाना है, वो आपका HCF कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता 24 तो ये आ जाता 3 8 24, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये दोनों मजीद अभी आगे डिवाइड हो सकते थे, 2 2 3 6, 2 4 8। तो अब इसका HCF होना था 3 2 6, क्योंकि ये अब आगे जाके मजीद डिवाइड एक साथ एक ही टेबल से नहीं होना हो रहा है, तो हमें वहां पे रोक देना है। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करें, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बना देता हूँ, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जी, तो प्रैक्टिस के लिए आपने ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। जिस तरह आपको मैंने 2 का करके दिखाया, इस तरह 3 डिजिट्स का भी इजीली हो सकता है, ठीक है। HCF में आपने क्या करना है, आपने देखना है कि वो जो है जैसे ही दोनों एक साथ डिवाइड होना रुक जाए तो आपने उसका वही HCF ले लेना है, और LCM के लिए आप बिल्कुल एंड तक आपने उनको चलाना है। अपना सबका ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।